محکمہ خزانہ نے 5 ہسپتالوں کو تنخواہوں اور آپریشنل اخراجات کے لیے بجٹ جاری کر دیا ہے۔ لیڈی ایچسن ہسپتال کو 15 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کو 22 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ میو ہسپتال کو 1 ارب 80 کروڑ روپے کا بجٹ جاری کر دیا گیا۔ میاں منشی ہسپتال کو 14 کروڑ 60 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی کو 9 کروڑ روپے جاری، جبکہ محکمہ خزانہ نے بجٹ ہسپتالوں کے اکاؤنٹ میں آن لائن کر دیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے 5 ہسپتالوں کو تنخواہوں اور آپریشن اخراجات کے لیے بجٹ جاری کر دیا۔ لیڈی ایچین ہسپتال کو 15 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ کاشتکاروں کے لیے گرین ٹریکٹر، کسان کار، سپر سیڈر سمیت بیشتر پروجیکٹ۔ پنجاب میں گندم اگانے والے کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر۔ ویٹ اینڈ سینسٹیو پروگرام سے کاشتکاروں کے لیے 1000 مفت ٹریکٹر۔ مریم نواز نے بٹن دبا کر گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے لیے ڈیجیٹل قرآن اندازی کی۔ مریم کی خود فون کر کے کامیاب کاشتکاروں کو مفت ٹریکٹر کی بھی مبارکباد۔ مریم نواز نے جھنگ کے محمد اقبال کو مفت ٹریکٹر نکلنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی منڈی بہاؤالدین کے کاشتکار سلمان احمد سے بھی گفتگو اور قرآن اندازی میں ٹریکٹر نکلنے پر سوچا خود فون کر کے مبارکباد دوں، ان کی جانب سے کہا گیا۔ 12.5 ایکڑ سے 57,733 سے زائد اراضی والے کاشتکاروں نے اپلائی کیا، جبکہ جانچ پڑتال کے بعد 21,496 کاشتکار قرآن اندازی کے لیے اہل ہیں۔ کاشتکاروں کو 55 ہارس پاور کے ٹریکٹر مفت دیے جائیں گے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ رواں سال 5,60,000 ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی گئی ہے۔ 3 ماہ میں تمام کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا اساتذہ کے لیے رہائشی منصوبے کا اعلان۔ صوبہ بھر کے 1000 اساتذہ کو فلیٹ دیے جائیں گے۔ فلیٹ قرآن اندازی کے ذریعے دیے جائیں گے۔ اساتذہ کو فلیٹ آسان اقساط پر فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں جنید ریاض سے، بتائیے گا۔ جی، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے رہائشی منصوبے کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کر دیا، اور اس حوالے سے 1000 اسکول اساتذہ کو جو ہے وہ فلیٹس دیے جائیں گے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کیبنٹ سے منظوری بھی لی جائے گی۔ اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر کے 3 لاکھ اساتذہ جو کہ مختلف اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ان کے لیے پہلے مرحلے میں 1000 فلیٹس جو ہے وہ دیے جائیں گے، جس کے لیے قرعہ اندازی جو ہے وہ کی جائے گی، کیونکہ اساتذہ زیادہ ہیں اور فلیٹس کم ہیں۔ پہلے مرحلے میں کیونکہ 1000 فلیٹس جو ہیں اساتذہ کو دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے قرعہ اندازی کا جو ہے وہ طریقہ کار اپنایا جائے گا، اور اساتذہ کو جو ہے آسان اقساط پر یہ فلیٹس جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے جو باقی معاملات ہیں اس کے حوالے سے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جس کے بعد یہ منصوبہ تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ کیبنٹ کو پرپوزل بھجوائی جائے گی، اور کیبنٹ سے منظوری کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے حکومت کی منظوری سے یہ فلیٹس اساتذہ کو فراہم کیے جائیں گے، کیونکہ اساتذہ جو ہے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ ہمارے معماروں کو جو پڑھا رہے ہیں ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ رہائشی اسکیموں میں جو ہے وہ شامل کیا جائے، کس طریقے سے باقی اداروں کے ملازمین کو رہائشی اسکیموں میں شامل کیا گیا اور ان کو پلاٹس دیے جا رہے ہیں، اس طرح اساتذہ کو بھی فلیٹس دیے جائیں گے تاکہ وہ بھی بآسانی جو ہے اپنی زندگی گزر بسر جو ہے۔ ٹھیک ہے جنید، بہت شکریہ۔ وفاق کی جانب سے نیٹ میٹرنگ پالیسی میں ترمیم کا معاملہ سنگین ہونے کا خدشہ ہے۔ لیسکو میں سولر سسٹم پر منتقل ہزاروں کنیکشنز کی بلنگ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بلنگ نہ ہونے سے صارفین کو ترمیم کے تحت معاہدے کے مطابق بلنگ کی جائے گی۔ تفصیلات شاہی سپرہ سے حاصل کر لیں گے، بتائیے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نیٹ میٹرنگ پالیسی میں ترمیم کے بعد وہ صارفین جنہوں نے اپنے کنیکشن لگوا رکھے ہیں لیکن ان پر بلنگ نہیں کی گئی، تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہونے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لیسکو میں ہزاروں ایسے صارفین ہیں جنہوں نے اپنے سسٹمز کی انسٹالیشن کو مکمل کیا اور اس کے بعد لیسکو سے یا گرین میٹر انسٹال کروائے یا پھر AMI بائی ڈائریکشنل میٹر حاصل کر کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی بنیاد پر بجلی کی پیداوار شروع کی۔ تاہم بعض ایسے دفاتر ہیں جن سے بلنگ نہیں کی گئی، اور بلنگ نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ اب ترمیم کی جا رہی ہے جس کی باضابطہ طور پر منظوری بھی دی جا چکی ہے، اس سے براہ راست وہ ان صارفین کو نقصان ہوگا جو آلریڈی اپنے سسٹم پہ لگوا چکے ہیں، لیکن ان کو ترمیم کے مطابق معاہدہ کرنا پڑے گا۔ ترمیم کے مطابق معاہدے سے براہ راست ان کو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ نیٹ آف بلنگ جو ہے، یونٹ ٹو یونٹ جو بلنگ ہے، وہ اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لیسکو میں ایسے ہیں صارفین جنہوں نے اپنے کنیکشن بھی لگوا رکھے ہیں، سولر سے بجلی بھی بنا رہے ہیں، لیکن
रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सब डिवीजन्स की सतह पर फाइल्स गायब होने की वजह से या फिर नहली और गफलत की बुनियाद पर जो वो सार्फिन जिन्होंने कनेक्शन ले लिए हैं उनकी बिलिंग नहीं की जा रही, और बिलिंग ना होने की वजह से अब ये जाहिर हो रहा है कि विफाक ने ये बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिप्राती अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला का दौरा जिनाह अस्पताल, नए प्रिंसिपल और MS तैनात कर दिए गए। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी 89 रोज़ की रुखसत पर चले गए। तफसीलात जान लेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जाहिद चौधरी। जी, जिनाह अस्पताल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है उनके गुज़श्ता रोज़ जो दौरा था, उस दौरे के बाद उनकी जानिब से अहकामात दिए गए थे कि प्रिंसिपल और MS जो है इनको हटाया जाए, जिस पर जो है वो अमल दरामद करते हुए प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर असगर नकी जो हैं वो 89 रोज़ की रुखसत पर चले गए हैं, और उनकी जगह जो शुबा सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद हैं उनको जो है वो 89 रोज़ के लिए लुक आफ्टर चार्ज प्रिंसिपल के ओहदे का दे दिया गया है। दूसरी जानिब जिनाह अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशिफ जहांगीर जो है उनको भी उनके ओहदे से जो है वो उनका जो आर्जी चार्ज था इस ओहदे का वो ख़त्म कर दिया गया है, और इसकी जगह पे जो है वो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो कि एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में ग्रेड 19 में, उनको MS जिनाह अस्पताल के ओहदे का चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। गंगाराम अस्पताल की निजकारी के खिलाफ एहतजाज, YDA, एबका, पैरामेडिकल स्टाफ और समेत दीगर मुलाजमीन सड़कों पर आ गए हैं। लाहौर समेत दीगर अजला से भी बड़ी तादाद में मुलाजमीन शरीक। मुजाहिरीन की रैली मॉल रोड की जानिब गामजन है। गंगाराम अस्पताल की निजकारी के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है, मुजाहिरीन का क्या कहना है? तलहा अशरफ वहाँ पर मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी तलहा। मैं माल रोड चेरिंग क्रॉस पे मौजूद हूँ, जबकि पूरे पंजाब के साथ काफ़ी इजलास से यहाँ पर आए हुए हेल्थ के वर्कर्स जिनको निजकारी के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। कुछ देर पहले गंगाराम हॉस्पिटल से एहतजाज शुरू हुआ और रैली की सूरत में ये सारे मुलाजमीन जो दूसरे शहरों से, जिसमें गुजरावाला का शहर, फैसलाबाद और दीगर ऐसे शहर हैं जिसमें कसूर भी शामिल हैं, और लाहौर के भी जो मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। जी, यहाँ पर एहतजाज मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कहाँ से आए हैं और क्या क्यों एहतजाज कर रहे हैं? हम फैसलाबाद से आए हैं, तो हम 2005 से भर्ती हैं इस महकमे में PHFMC में, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं। तो अभी ये मरियम नवाज़ और ख्वाजा इमरान नज़ीर की इनकी पॉलिसी है, ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठेके पे दे रहे हैं। एक बंदे को ठेके पे दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से स्टाफ रख रहा है और 15-15 हज़ार रुपये दे रहा है। तो हमारा तो ये मुतालबा है कि हम तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में, हमारा तो ना पेंशन का मसला है ना और कोई, जो PHFMC के मुलाजमीन हैं उनको क्यों बेरोज़गार किया जा रहा है। और 15 साल से आप 18 साल पहले का अंदाज़ा करें तो आपको पता चलेगा कि फैसलाबाद या पूरे पंजाब में यहाँ BIU पे लोगों ने जानवर बांधे हुए थे, वो उनको हमने आबाद किया है। ये बिल्कुल खवातीन भी यहाँ पर शामिल हैं जो एहतजाज कर रही है। मैंने बताइएगा कहाँ से आई हैं और क्यों एहतजाज कर रही हैं? जी, हम लोग जिला बहावल नगर से आए हैं, और ये जो हमारी आज की स्ट्राइक है ये आउटसोर्सिंग के खिलाफ है। महकमा सेहत को बुलडोज किया जा रहा है, उसकी निजकारी की जा रही है और ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यहाँ पर मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नाम से इन्होंने ये तहरीक शुरू की है और मुतालबात किए जा रहे हैं कि निजकारी के खिलाफ। ठीक है तलहा अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। FBR ने तमाम फील्ड फॉर्मेशन से सरप्लस पूल में मौजूद मुलाजमीन का डेटा मांग लिया है। तमाम चीफ कलेक्टर्स और डायरेक्टर जनरल से मुलाजमीन की तफसीलात तलब की गई हैं। इन तफसीलात के हवाले से तफसीलात जान लेंगे कलीम अख्तर से। कलीम, बताइएगा। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसे तमाम मुलाजमीन का डाटा मांग लिया गया है जो कि सरप्लस पूल के अंदर शामिल हैं, जबकि इस सिलसिला में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तमाम जो फील्ड फॉर्मेशन सरबराहान हैं उन्हें खुसूसी मरासला अरसाल कर दिया गया है, जिसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि तमाम जो डायरेक्टर जनरल्स, चीफ कलेक्टर्स और जो कलेक्टर्स हैं वो तमाम तर ऐसे मुलाजमीन का डाटा जो कि सरप्लस पूल के अंदर हैं वो बोर्ड को भिजवा दिया जाए। जबकि जो मरासला अरसाल किया गया है उसके मतन के मुताबिक मजीद कहा गया है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन जो कि सरप्लस पूल के अंदर हैं, जिसमें असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, DEOs और इसके अलावा
जो असिस्टेंट लाइब्रेरी, UDCs और LDCs हैं उनका डाटा मांग लिया गया है, जबकि इसके साथ साथ FBR हेडक्वार्टर ने सप्लाई, ड्राइवर और इसके अलावा जो नायब कासिद समेत मुख्तलिफ जो स्केल के मुलाजमीन हैं उनका डाटा मांगा गया है। और बाकायदा तौर पर FBR की जानिब से ये भी कहा गया है तमाम इंफॉर्मेशन को कि जो तमाम तर डाटा है वो हंगामी बुनियादों पर 27 मार्च से पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम। गैर मुस्लिम तलबा और तालिबा के तालीमी वज़ाइफ के इजरा की दरख्वास्तों का अमल शुरू। मैट्रिक तक PhD के मुस्तहिक अक़लियती तालिब इल्म मुस्तफ़ीद होंगे। सरकारी तालीमी इदारों में बाकायदा तालीम हासिल करने वाले अहल होंगे। तस्लीम शुदा बोर्ड यूनिवर्सिटी से कम अज़ कम 40% नंबर्स के साथ पास होना ज़रूरी है, जबकि उम्मीदवार के घराना की माहाना आमदनी 29,600 पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा ना हो। सिर्फ महकमे की तरफ से दी गई वेबसाइट पर दरख्वास्त कबूल होगी। महकमा तालीमी कवायफ या दीगर मालूमात गलत होने पर वजीफ़ा रोक सकता है। महकमा इस ज़िम्मे में कानून कार्रवाई का भी हकदार होगा। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल वजीफ़े का इजरा महकमे की मुजव्वज़ा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। महकमा किसी भी वक्त बगैर वजह बताए वजीफ़ा प्रोग्राम बंद करने का हक महफूज रखता है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के असामियों के तहरीरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तहरीरी इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया गया। फैसलाबाद डिवीज़न की इन्फोर्समेंट अफसर की 31 असामियों के लिए 158 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि गुजरांवाला डिवीज़न की 21 असामियों के लिए 108 उम्मीदवार तहरीरी इम्तहान में कामयाब हुए हैं। इन्फोर्समेंट अफसर मुल्तान रीजन की 26 असामियों के लिए 132 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसी में मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेंगे कैसर खोखर से। बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी की असामियों के तहरीरी इम्तिहान का नताइज का ऐलान किया गया है और फैसलाबाद डिवीजन की इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 31 असामियों के लिए 158 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान पास किया है। फैसलाबाद डिवीजन के लिए सलमा महमूद, फरजाना परवीन, नबीला, ईशा, मिर्शा, राबिया, हजाब, फातिमा, रजिया बीबी शामिल है, जबकि गुजरांवाला डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और इस वाले से जो ये इनके जल्द ही इंटरव्यू होंगे और डीसी खान डिवीजन के जो लोग हैं वो भी कामयाब हुए हैं। ठीक है, कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो ने पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। तफसीलात हासिल कर लेंगे हसन अली से। बताइएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे हैं और आज जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब के रहनुमाओं को मुलाकात के लिए जो है वो तलब कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस बहरिया टाउन में जो है वो आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ पंजाब में पार्टी के हवाले से खसूसी हिदायत जो है वो भी जारी करेंगे। जबकि ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो कि नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से मुज़ाकरात कर रही है, उसके मेंबरान को भी आज जो है वो तलब कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबरान हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को नून लीग के साथ अब तक होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उन पर ब्रीफिंग देंगे और जो सूरत हाल है सियासी उसके हवाले से बताएंगे। जबकि ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको आइंदा के इजलासों में के हवाले से जो है वो खसूसी हिदायत जारी करेंगे और ये भी बताएंगे कि आइंदा नून लीग के साथ जो है वो किस तरह से मुशावरत करनी है और किस तरह से चलना है। जबकि ज़राए की जानिब से भी बताया जा रहा है कि पंजाब की जो क़यादत है उसको ख़ास तौर पे बुलाया गया और ये भी मुमकिन है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका।